Okay, good morning, everyone. So now we'll start discussing your doubts. तो हम लोगों ने कल 50 तक डिस्कस किया था 50 तक. So now we'll discuss from 50 to 60. So please tell your doubts from 50 to 60. '54 and '57. '54, '57 and '58. Okay. So let us start the discussion now. Some students haven't joined yet. It's okay, but okay. So we'll start. Still 14 students haven't joined. Students are joining very late.
Newton route joint. So till now we have these four doubts: 54, 57, 58, and 59. Okay, so let us discuss this. Okay, I am sending you yesterday's PDF. Just a minute. कल जो हमने डिस्कस किया था, I'll send you that. Okay. So we'll start with question number 54 now. So what is the question? Okay, just check once, all of you. I have sent you. Mila and Mila, just check once. Okay, okay. Okay, chalo, all of you received it. Good. So there is a conveyor belt, and this gravel is dropped from here on this. So dm by dt, the rate of mass that is falling is given to us 0.5 kg per second. So what extra force is required Newton to keep the belt moving at a speed of? So to keep this belt from moving at a speed of 2 meter per second, what extra force is required? Now momentum is equal to mass into velocity. Force is equal to rate of change of momentum, that is rate of change of mv. Now v is constant. This is, I'm writing for the conveyor belt. This is for the conveyor belt. So v is constant and the mass of conveyor belt is varying. What is happening? The mass of the conveyor belt is varying with time. So this force will become V into dm by dt. Now V is 2, dm by dt is 0.5. So the answer is 1. Did you understand? So 54 is done. Let us take 57.
See, the momentum of this belt is mass into velocity, but the mass of the belt is changing. Right? The mass of the belt is changing, but its speed is constant. Now, what is momentum? Momentum is mass into velocity. V is constant. Constant we will take outside. So this is the answer. So let us take question number 57. 57 we have already done in the class. 57 is already done ना? ये HCV का क्वेश्चन है. This is the ceiling. This is, so when it will accelerate, it will go like this behind. So this is the tension. Take the components. Let the inclination be theta. So this will be T cos theta. The top one will be T cos theta, and this will be T sin theta. This is mg. So you write summation fx is equal to ma. So T sin theta is equal to ma. And summation fy is equal to may, but ay is 0. So T cos theta minus mg is 0. So T cos theta is equal to mg. So if you divide this two, you'll get the answer. If you divide them, you'll get tan theta is equal to a by g. Theta is equal to tan inverse of a by g. Right? So this is the acceleration, it will go opposite to it. So opposite to the acceleration. We have already done this in the class. We have already done this in the class. Prakash was asking this. Sorry, Pratiksha. Pratiksha. Yes, please unmute yourself. आपने ये सवाल क्यों पूछा? ये तो क्लास में हुआ है ना? आपने क्लास नोट्स रिवाइज नहीं किया क्या? ओके, ये हो गया 57. अब देखो 58. A pendulum is suspended from the roof of a railroad car. When the car is moving in a circular track, the pendulum inclines. तो बहुत सिंपल है. मान लो ये है और ये यहाँ पे है और ये पेंडुलम है. तो जब ये इस तरह मूव कर रहा है सर्कुलर इसमें, तो अभी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर इज सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. एक एसी होता है, एक एटी होता है. अब आप खुद देखो यहाँ पे जो ये, अगर आपने ऑब्जर्वर ले लिया, ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इधर है, तो इस पे सूडो फोर्स यहाँ लगेगा ना. इसके लिए ये ऐसा हो जाएगा.
तो बस ये स्पाइडरमैन है। तो अभी आपको ये पता नहीं है, इसके लिए ये आपने किया नहीं। अभी अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन जो होता है उसमें इधर होता है अपना एक्सेलरेशन एक, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और ये टेंजेंशियल। तो जो ऑब्जर्वर आपने लिया है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इधर है, तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, इसमें इधर लगेगा, सूडो फोर्स एम ए, इसलिए ये इधर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अवे फ्रॉम द सेंटर, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको ऐसे ही समझ लो, आपको सर्कुलर मोशन में और समझ में आएगा। ठीक है, अभी किसी ने पूछा 59। देखो आज 10 बच्चे एब्सेंट है, आज सिर्फ 54 स्टूडेंट्स है। डेली 65 66 रहते हैं, आज सिर्फ 54 है, 11 एब्सेंट। क्योंकि उनको पता है आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वो होमवर्क तो करते नहीं है वो लोग। देखो 59 क्वेश्चन में दिया है, ड्रम्स ऑफ ऑयल आर कैरिड इन अ ट्रक, ड्रम्स ऑफ ऑयल आर कैरिड इन अ ट्रक, ठीक है। तो ये भी देखो ऐसा है, मान लो ये ट्रक है या ये ड्रम है, तो ये जो है इसमें इस तरह से, तो ट्रक का एक्सेलरेशन आगे है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो ऐसा हो जाएगा, या वो आपसे पूछ रहा है कि वो ऐसा हो जाएगा, कैसा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब इट रिमेन अनअफेक्टेड और राइज टुवर्ड्स फॉरवर्ड और राइज टुवर्ड्स बैकवर्ड, कैसा होगा ये पूछा गया। तो आप देखो, तो हम लोग इसमें इसको समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इसका होगा कैसा, इट विल राइज बैकवर्ड, ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस ही हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो आपने अगर ऑयल का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, डीएम मास का, इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो इधर का जो फोर्स है F2 और इधर का जो फोर्स है F1, तो जो एक्सेलरेशन जिधर है वो बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं। यानी F2 शुड बी ग्रेटर देन F1, देन ओनली इट इज पॉसिबल, तभी वो इधर एक्सेलरेट हो सकता है, नहीं तो एक्सेलरेट नहीं हो सकता। अगर इधर एक्सेलरेट होना है तो ये फोर्स बड़ा होना चाहिए, F2 must be greater, then only this element dm can be accelerated, then only dm can be accelerated in forward direction। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स है प्रेशर, ऑयल का प्रेशर इनटू एरिया, ऑयल का प्रेशर रो जी एच होता है इनटू एरिया। तो अगर F2 should be greater than F1, then rho g h2a must be greater than rho g h1a, so h2 must be greater than h1। ये होता है लिक्विड प्रेशर, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, इसको रो जी एच कहते हैं। तो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आप समझ लो अब इसको ऐसे ही है। तो तो यहाँ पे जो हाइट है वो ज्यादा होना चाहिए, h2 मस्ट बी ग्रेटर देन h1। ये सॉरी, ये मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ। तो ये जो है, ये जो हाइट है h2, ये हाइट है h1।
तो H2 मस्ट बी ग्रेटर देन H1। ठीक है, ये हमने प्रूव किया है। और जो लिक्विड प्रेशर होता है, लिक्विड प्रेशर उसका फॉर्मूला होता है रो जी एच। रो होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, एच इज, जो ये हाइट आप देख रहे हो या डेप्थ, जी तो पता ही है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो 59 तक हो गया है। अब आप लोग 60 से 70 पूछो। 60 टू 70 में कोई डाउट है? बोलो बोलो, देखो 3 बच्चे और गायब हो गए, अब सिर्फ 51 बचे हैं। बच्चे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं क्लास क्योंकि होमवर्क नहीं किया है। बोलो भाई। हाँ, आप सूडो फोर्स से भी सोच सकते हो, सूडो फोर्स से भी सोच सकते हो कि इसका एक्सेलरेशन आगे है, ड्रम का, ड्रम का एक्सेलरेशन आगे है। तो आपने अगर इस ड्रम पे एक ऑब्जर्वर ले लिया, एक ऑब्जर्वर आपने ले लिया ड्रम पे, स्पाइडरमैन, सूडो फोर्स पीछे लगेगा। तो इसकी वजह से हाइट ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ऐसे भी सोच सकते हैं, सूडो फोर्स से भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो 61 पूछा है। 61, inertia is used in normal terms, translatory motion. Moment of inertia is used in rotatory motion. ये जय आपने क्या लिखा है? आई डिडंट अंडरस्टैंड, क्या लिख रही हो तुम? वो स्टार 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 क्या है वो? क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो 61 और 66 पूछा गया है। लेट अस डू दैट। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 में आपको दिया है
A ball weighing 10 gram hits a hard surface vertically with a speed of 5 meter per second and rebounds with the same speed. The ball remains in contact. कितना सिंपल क्वेश्चन है यार ये. कौन पूछा है 61? नूतन, नाभांगी. इतना आसान सवाल. धनवंतरी, योगेश्वरी. ठीक है सुनो. 61 में आपको दिया है बॉल वेइंग 10 ग्राम. तो एक बॉल है जिसका मास दिया है आपको 10 ग्राम. तो इसका मास आपको 10 ग्राम दिया है. ये ऐसे आता है नीचे और ये यहाँ पे हिट करता है. हिट, तो हिट करते वक्त उसका जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड. और बोला गया है कि हिट करने के बाद वो वापस उसी स्पीड से जा रहा है, सेम स्पीड. मतलब फाइनल स्पीड भी 5 है. और जो टाइम दिया है आपको, टाइम ऑफ कांटेक्ट, वो दिया है 0.01 सेकेंड. फोर्स पूछा है. फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. तो इसको ले लो प्लस, इसको ले लो माइनस. तो चेंज इन मोमेंटम यानी एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल बाय टाइम. ठीक है. सो दिस इज फोर्स, यानी एम कॉमन, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टाइम. ओके. So now mass is how much? Mass is 10 gram. So 10 gram is 10 into 10 raised to minus 3. V final क्या है? V final देखो ये है +5 और V initial क्या है? V initial है -5. तो V initial है -5 और V final है +5. और टाइम कितना है? टाइम है 0.01. तो ये भी 0.01 ही है, ये वाला. और ये भी वही है, कैंसिल हो गया. तो आपको मिल गया फोर्स इज 10 न्यूटन. समझ में आया सबको? सबको समझ में आ गया? 61 और 66. Now you see question number 66. 66 में आपको क्या दिया है? When a horse pulls a wagon, तो wagon, ठीक है. तो ऐसा एक ये वैगॉन है. ओके. और ये कनेक्टेड है यहाँ पे और यहाँ पे घोड़े हैं. ठीक है. ओके. तो ये है कहानी. अब क्या होगा? अब यहाँ बोला गया है कि the force that causes the horse to move forward is the force he exerts on the wagon exerts on him, the ground exerts on him, or he exerts on the ground. देखो तो वो क्या कर रहा है? तो घोड़ा जो है
वो ग्राउंड पे पीछे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू हॉर्स, ड्यू टू घोड़ा, तो ग्राउंड उस पर फोर्स आगे लगाएगा, सो दिस इज फोर्स ऑन हॉर्स ड्यू टू ग्राउंड, सो द आंसर इज द ग्राउंड एक्सर्ट्स ऑन हिम, so it is the force the ground exerts on him. ये तो हमने डिस्कस किया था ना, मैंने बताया था आप लोग को हम लोग कैसे दौड़ते हैं, हम लोग ग्राउंड पे पीछे फोर्स लगाते हैं, ग्राउंड हम पे आगे लगाते हैं। Okay, so let us take question number 68 now. So 68 में आपको दिया है a material A of mass m1 exerts a force on another material body of mass m2 if the acceleration be a2, the magnitude of the acceleration of A is, देखो a material body A of mass m1, तो ओके 68 नहीं है क्या, 71 है, ओके yeah, now all of you can ask your doubts from 70 to 80. Now you can ask your doubts from 70 to 80. So 71 and 77. Okay. So let us see 71. A man of weight W is standing on a lift which is moving upward with an acceleration A. So this also we have discussed already 3 times. 3 times already discussed. You all have to read your notes properly, okay? Already discussed 3 times. So आपको यहाँ पे दिया गया है a man of weight W. तो एक आदमी है जिसका एक्चुअल जो वेट है जिसका एक्चुअल वेट W है, वेट W मतलब when he is standing on the ground, not in the lift. जाए आपको याद नहीं आ रहा है, this is question number I think 15 or 16, just check once and discuss in the class lift wala questions, so don't say that we have not discussed, okay? Almost 3 times we have discussed this. तो यहाँ पे जो एक्चुअल जो सरफेस है, तो ये जो नॉर्मल लगेगा और ये जो लगेगा mg, तो दिस इज जब आप ग्राउंड पे लोगे, ग्राउंड पे mg, ये जो वेट आप देख रहे हो एक्चुअल वेट वो mg के बराबर है। अब में खड़ा है आदमी विच इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, और यहाँ पे अगर वेइंग मशीन आपने, तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस केस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन मूविंग अपवर्ड विद
एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए है, तो ये ऑप्शन अलग है, ये n1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला नीचे वाला माइनस n1 माइनस mg इज इक्वल टू, तो ये n1 ये है w, दिस इज w, दिस विल बिकम n1 माइनस w इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय g डिवाइड बाय g, तो n1 माइनस w इज इक्वल टू, ये फिर से w हो जाएगा, w ये w a बाय g, तो n1 इज इक्वल टू w 1 प्लस a बाय g। ठीक है, समझ में आया? Now see question number 6. 76 भी बहुत सिंपल है, इसमें क्या है, ये ऐसा एक रोप है इसको यहाँ से खींचा है, ऐसे इधर खींचा है, इधर फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, और ये एंगल निकालना है, और ये वेट दिया गया है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें जो है टेंशन टी मान लो, तो इस टी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये होगा टी साइन थीटा। सो दिस इज प्लस एंड माइनस, एक्सेलरेशन जीरो है, ए वाई इज जीरो, ए एक्स इज ऑल्सो जीरो, इक्विलिब्रियम में है ना। तो आप क्या लिखोगे, टी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू इज जीरो, तो टी कॉस थीटा आएगा इक्वल टू 60 और टी साइन थीटा आएगा 50, तो tan थीटा आएगा 5/6, थीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ 5/6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 76। ये कितना आसान सवाल है, आप कितना, आप लोग कोशिश नहीं कर रहे थे। 77, 79, देखो 77, आओ 77 लिया है, लिफ्ट ऑफ मास 100 kg स्टार्ट्स मूविंग, तो एक लिफ्ट है, और कितना, ये कितना आसान सवाल है, 77 कितना इजी है। हाँ, आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो अच्छे से, दे नॉट ट्राइंग वेल। ऊपर ये लगा है स्ट्रिंग, इसका टेंशन का आपको बताना है वैल्यूज। तो आपको एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में जस्ट एक्सेलरेशन निकालना है आपको, ये v है, आप बिल्कुल ट्राई नहीं करते तुम लोग, ठीक है। ये है 2, ये है 6, ये है 7, तो पहले यहाँ का एक्सेलरेशन निकालो, यहाँ का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यहाँ का एक्सेलरेशन होगा v2 माइनस v1 बाई डेल्टा टी, तो v2 कितना है 4, v1 कितना है 0 और टाइम कितना है 2, तो ये 2 आया प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 आएगा, क्योंकि v2 माइनस v1
यार कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो मेरे भाई। हाँ, थोड़ा मेहनत तो करो। क्या ऐसे ही आएगा नीट में 600? हाँ। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा? v2 इज जीरो, इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो जीरो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 4 है और टाइम है 1। 6 माइनस 7 माइनस 6 इज 1। तो ये -4। तो ये एक्सेलरेशन आ गए। तो अब ये है टी, ये है 100 इंटू जी यानी 1000। पहली बार एक्सेलरेशन ऊपर है, कितना है? 2 है पहली बार। तो क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे टी माइनस 1000 इज इक्वल टू 100 ए, यानी 200। तो टी वन कितना आएगा? टी वन आएगा 1200। दूसरी बार में एक्सेलरेशन जीरो है, तो टी माइनस 1000 इज इक्वल टू जीरो। तो टी टू कितना आएगा? 1000। तीसरी बार में एक्सेलरेशन नीचे है 4 का, क्या लिखोगे? 1000 माइनस टी थ्री इज इक्वल टू 100 इंटू ए, यानी 4। तो टी थ्री आएगा 600। अब खुद देख लो, टी वन इज टू टी टू इज टू टी थ्री क्या होगा? 1200 इज टू 1000 इज टू 600। ठीक है, तो इसको टू, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 5 जा 1000 और 2। समझ में आया क्या? साक्षी, साक्षी ने पूछा ये डाउट, प्रतीक्षा ने पूछा है, वेदिका ने पूछा है। ये प्रतीक्षा और वेदिका। 77 के बाद किसी ने 79 पूछा है। देखो 79। 79 में आपको दिया है, द पुलिस एंड स्ट्रिंग शोन फिगर आर स्मूथ और सिस्टम रिमेन विद एंगल थीटा मस्ट बी। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। आप लोग कभी कभी नोट्स भी रिवाइज किया करो यार, नोट्स के क्वेश्चन भी वापस सॉल्व किया करो। √2m, इसका मास m है। सबका एक्सेलरेशन ये क्या बोल रही हो नावानिस, रोज करेंगे रिवाइज। अभी तो किया नहीं किया स्टार्ट। तो यहाँ पे ये है थीटा। ये इतना आसान सवाल क्यों पूछ रहे हो यार, बहुत बोर लग रहा है मुझे। तो ये जो है इधर टेंशन टी है, इधर टेंशन टी है, और ये भी टेंशन टी है। टेंशन टी का वैल्यू mg आएगा, एक्सेलरेशन जीरो है। इसके कंपोनेंट ले लो, इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ये आ जाएगा टी कॉस थीटा, दोनों का टी कॉस, तो वो होगा 2t कॉस थीटा। और नीचे है √2 mg, टी साइन कैंसिल हो जाएगा,
टी साइन और टी साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t cos थीटा माइनस रूट टू एम जी इज 0, और t का वैल्यू mg है वो डाल दो, तो 2 mg cos थीटा इज इक्वल टू रूट टू mg। तो यहाँ से ये mg mg कैंसिल हो गया, cos थीटा आ गया 1/√2। कैसे आया 1/√2? √2/√2 क्या होता है? 1/√2 होता है ना। थीटा कितना आ गया? cos इनवर्स ऑफ 1/√2 45 डिग्री। ठीक है, तो चलो कल आप लोगों का होमवर्क रहेगा, कितने सवाल है इसमें? 80 से इसमें 109 है। कल का होमवर्क है 80 से 109। ठीक है, 80 to 109, exercise 1। So all of you please note down this homework. Okay, so now we will discuss HCV 21 to 25। Okay, chalo, we'll now start with question number 21। So I'll explain this, all of you please see here। So 21 में आपको क्या दिया है? एक आदमी है, तो ये जो आदमी है ये स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है एक फोर्स F से। ये जितना फोर्स लगाएगा टेंशन भी उतना ही होगा, टेंशन विल बी इक्वल टू F। ये सब जगह टेंशन आ जाएगा, देखो ये सब जगह टेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि ये कितना फोर्स लगाएगा ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, ताकि ये जो नीचे वाला है ये मूव ना करे। अब ये मूव ना करे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो एक्सेलरेशन हो एक्स के अलोंग वो जीरो हो, वाई के अलोंग तो जीरो है ही है, वाई के अलोंग तो जीरो है ही है। तो हमने दोनों का सिस्टम मान लिया, यहाँ पे m प्लस एम को क्या ले लिया है? सिस्टम। m प्लस एम को क्या ले लिया है? सिस्टम ले लिया है। ठीक है, तो m प्लस एम को सिस्टम ले लेंगे तो क्या फोर्स लगेगा? तो देखो, तो यहाँ पे
जो ये आदमी है, ये आदमी क्या कर रहा है, नीचे फोर्स लगा रहा है नीचे। जितना फोर्स लगा रहा है टेंशन उतना ही होगा स्ट्रिंग में। और ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक पे टेंशन यहाँ लग रहा है, यानी ब्लॉक का टेंडेंसी इधर जाने का है। तो ये आदमी ब्लॉक पे फ्रिक्शन का लगाएगा पीछे, ब्लॉक आदमी पे फ्रिक्शन का लगाएगा आगे। पर अगर आपने इसको सिस्टम मान लिया, इफ यू टेक m plus m as a system, तो क्या होगा, तो फ्रिक्शन विल बिकम इंटरनल, फ्रिक्शन विल बिकम इंटरनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो उस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, तो उस पे जो नीचे वाला फ्रिक्शन है वो एक्सटर्नल हो जाएगा, उनके बीच वाला फ्रिक्शन वो इंटरनल हो जाएगा। तो फिर आपने इसको सिस्टम मान लिया m प्लस एम को। ठीक है, m प्लस एम को आपने सिस्टम मान लिया, तो क्या होगा, तो ये हो गया m प्लस एम, यानी दोनों को सिस्टम मान लिया। तो जो जो आदमी है, आदमी पे ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन, तो इस पे भी लगेगा टेंशन। ब्लॉक पे यहाँ क्या लग रहा है, टेंशन। ठीक है, ये दो स्ट्रिंग की वजह से फ्लोर क्या लगा रहा है, नॉर्मल लगा रहा है। और नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटी, m प्लस एम जी। और नीचे फ्लोर क्या लगाएगा, फ्रिक्शन, एफ एस। तो एफ एस क्या होगा, म्यू है। तो स्टेप नंबर वन क्या होता है, स्टेप नंबर वन होता है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। तो उसके लिए आप यूज करोगे समेशन एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, ये प्लस प्लस ये माइनस, तो एम प्लस टी माइनस एम प्लस एम जी इक्वल टू एम ए जीरो है। तो एन प्लस टी माइनस एम प्लस एम जी इज इक्वल टू, ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। अब स्टेप नंबर टू क्या है, आपको यूज करना होगा समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। तो एक तो ये टेंशन, ये प्लस ले लो ये माइनस ले लो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो ही है। तो आपको मिल जाएगा टी माइनस एफ एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टी का वैल्यू। तो यहां से एन निकाल लो, एन क्या आएगा, एम प्लस, सॉरी, तो एन कितना आएगा, एम प्लस एम जी माइनस टी आएगा। तो टी माइनस एफ एस का वैल्यू क्या होगा, म्यू एन। तो यहाँ पे डाल दो एन का वैल्यू, एम प्लस एम जी माइनस टी। सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लोगे क्या, देखो अभी सिर्फ 50 पार्टिसिपेंट बचे हैं और एक दो भाग गए। ठीक है, 21 हो गया, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट नेक्स्ट 21 के बाद।
21 के बाद 26। क्या बात करें, 23 में डाउट नहीं है प्रतीक्षा, आपको 23 में डाउट नहीं है? हाँ, 23 है, 24, 25, इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? नहीं है तो अच्छी बात है। ये मैंने सॉल्व किया है 23 का फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है, ये 23 का सेकेंड पार्ट, केस 2। देखो कितना लंबा सवाल है, ये 23 का थर्ड पार्ट। मैंने तीनों पार्ट सॉल्व करके रखे हैं यहाँ पे। ये 24 है, तो 23 बता दीजिए सर। सुन लीजिए वेदिका जी। ये बहुत लंबा सवाल है। तो 23 में देखो क्या हो रहा है। देखो 23 में आपको तीन ब्लॉक दिए। ये ए है, इसका मास 2 kg का, बी 3 और सी 7। तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो F1, यहाँ जो लगेगा F2, और नीचे तो जीरो ही है। तो फर्स्ट केस में फोर्स कहाँ लग रहा है? वो लग रहा है ए पे। एक बार क्वेश्चन देखो सब लोग। एक बार क्वेश्चन देख लो। अच्छा अब देखो, तो ए पे लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे ऐसा, assume a plus b plus c as a system। इसको सिस्टम मान लेंगे। तो आप देखो, आता बघा सगळ्यांनी, ए ची टेंडन्सी पुढे जायची आहे, ए ची टेंडन्सी पुढे जायची आहे। तर बी काय करणार, बी ए ला अपोज करणार, म्हणजे ए वर फ्रिक्शन कुठे लागेल, ए वर फ्रिक्शन मागे लागेल F1। तर ह्याचं रिॲक्शन बी वर कुठे लागणार, पुढे। आता बी ची टेंडन्सी पुढे जायची आहे, तर सी काय करणार, सी त्याला अपोज करणार, म्हणजे सी बी वर फ्रिक्शन कुठे लागणार, मागे। तर याचं रिॲक्शन सी वर कुठे लागेल, पुढे। आता जर आपण ए प्लस बी प्लस सी ला सिस्टम जर असं समजलं, असं घेतलं, तर F1 आणि F2 हे दोन्ही काय होणार, हे दोन्ही होणार इंटरनल फोर्स। हे दोन्ही काय होणार, इंटरनल फोर्स। आणि टोटल मास होणार 2 प्लस 3 प्लस 7 म्हणजे 12 kg। आणि त्याच्यावर एकच एक्सटर्नल फोर्स आहे 10 न्यूटन। तर एक्सेलरेशन किती येणार, फोर्स अपॉन मास म्हणजे 10/12 म्हणजे 5/6। So this is step number 1. What is this? This is step number 1. आता स्टेप नंबर 2,
म्हणजे व्हेरिफिकेशन. आता आपल्याला हा व्हेरीफाय करावं लागतं. So step number 2 is verification. We have to verify. So we will take block A as system. We'll take block A as system. ये लिया हमने block A. तो इकडे काय लागणार 10 न्यूटन आणि इकडे आपल्याला फाइंड करायचे आहे F1 रिक्वायर्ड. F1 रिक्वायर्ड आणि एक्सेलरेशन किती आहे 5/6. ओके, तर आपण काय करणार, तर हा प्लस हा मायनस, 10 minus F1 required is equal to, त्याचे मास आहे 2 kg. So 2 into acceleration म्हणजे 5/6. तर F1 required चं व्हॅल्यू किती आहे 10 minus 10/6 म्हणजे 5/3. 30 minus 25 that is 25/3. त्याचे व्हॅल्यू बघा 3 8 the 24, 3 3 the 9, 8.3 न्यूटन. तर आता F1 S चं मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती येणार, तो येणार म्यू एन. आपल्याला म्यू किती दिला आहे 0.2 दिला आहे. तर 0.2 आणि नॉर्मल किती येणार, तर 2 kg ला बॅलन्स करायसाठी नॉर्मलचे व्हॅल्यू येणार 20 न्यूटन, कारण खाली 20 न्यूटन लागत आहे. तर म्हणजे 20, तर आता 4 न्यूटन. आता तुम्ही बघू शकता दिस इज नॉट पॉसिबल. F1 required is greater than F1 max. So this is not possible. This is not possible. Yeah, good. So it means what? It means our assumption is wrong. It means our assumption is wrong. So this means that our assumption is wrong. So A will move separately. A will move separately and kinetic friction will happen. तो ये A हो गया, ये 10 हो गया, ये Fk हो गया. Fk कितना आएगा 4 न्यूटन, क्योंकि Fk का वैल्यू फिक्स होता है म्यू एन. Mu is 0.2, n is mg. So 2 into 10. This is 4 Newton. So the acceleration will be net force 10 minus 4 by mass 6/2. So 3 is the answer. This is acceleration of A. Now take B plus C as a system. So if you take B plus C as a system, so it will be 3 plus 7. So what is the force that will act? इसका रिएक्शन लगेगा इधर आगे, बस एक ही फोर्स लगेगा. तो एक्सेलरेशन कितना होगा फोर्स अपॉन मास. तो हमने अभी क्या किया, अभी हमने बी और सी को सिस्टम माना, पहले ए बी सी को माना था, अब हमने बी और सी को सिस्टम माना. नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. द फोर्स इज 4, मास इज 10, so it's 0.4 meter per second square. Now again we have to verify. Again we have to
verify. So we will take C as a system. C यानी 7 kg. तो C पे फोर्स कहाँ लग रहा है? C पे फोर्स लग रहा है आगे F2. So we will find F2 required. ठीक है, C पे फोर्स लग रहा है आगे. So we will find out F2 required. Acceleration is 0.2. So net force is equal to mass into acceleration. So F2 required कितना आएगा? 7 into 0.4 मतलब 2.8. Now what is F2 max? F2s का max value कितना होगा? वो होगा mu n. mu2 n2. mu2 कितना दिया है? 0.3 दिया है. n2 कितना होगा? n2 हो जाएगा, तो आपको ये है 2, ये है 3. आपको ये वाला नॉर्मल चाहिए, ये वाला नॉर्मल. ये वाला नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है? 50 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है, 5 kg. तो वो हो गया 50. तो ये आ गया 15 न्यूटन. Is it possible? Required is 2.8 and this is 15. Is it possible? Yes, it is possible. So, yes, it is possible. So what? So B and C will move together. B and C will move together. ठीक है. So acceleration of A कितना आया? 3. Acceleration of B कितना आया? 0.4 और C भी कितना है? 0. तो समरी देख लो. समरी, व्हाट इज द समरी? हमने पहले लिया A प्लस बी प्लस सी को सिस्टम. तो एक्सेलरेशन आया 5/6. फिर हमने क्या किया? वेरीफाई. तो फिर हमने लिया ए को सिस्टम. तो F1 रिक्वायर्ड वो आया 8.3 ग्रेटर देन F1 S मैक्स. तो हमने बोला क्या लगेगा? एफ के लगेगा. F1 के. तो F1 के कितना है? वो है 4. स्टेप नंबर 4 हमने क्या किया? फिर हमने यहाँ से निकाल लिया एक्सेलरेशन ऑफ ए, निकाल लिया 3. फिर हमने क्या किया? बी प्लस सी को सिस्टम. फिर क्या लगाया इस पे? इस पे भी एफ के लगेगा. इस पे तो उससे इसका एक्सेलरेशन आया 0.4. फिर उसको क्या किया? उसको भी वेरीफाई किया. वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के लिए हमने सी को सिस्टम माना. सी को सिस्टम माना तो F2 रिक्वायर्ड आया 2.8. तो हमने देखा कि F2 रिक्वायर्ड इज लेस देन F2s, इसलिए दैट्स पॉसिबल. तो हमने बोला एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 0.4. दिस इज द समरी. डिड यू अंडरस्टैंड? ये पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, आप फिर वापस देख सकते हो. ठीक है. तो अब आते हैं इसके बी पार्ट पे. अब देखो ये इसका बी पार्ट है. एक मिनट.
चलो, तो ये है केस 2, ठीक है। तो केस 2 में क्या लग रहा है, देखो केस 2 भी आप डायरेक्ट समझ लो यहाँ से। केस 2 में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है बी पे, ठीक है। केस 2 में जो फोर्स लग रहा है वो बी पे लग रहा है। तर बी ची टेंडेन्सी पुढे जायची आहे, बी ची टेंडेन्सी आहे पुढे जायची टेंडेन्सी आहे। तर बी वर फ्रिक्शन कुठे लावणार, तर सी त्याला अपोज करणार, ए पण त्याला अपोज करणार, म्हणून सी बी वर फ्रिक्शन कुठे लावणार, मागे, आणि ए पण बी वर फ्रिक्शन कुठे लावणार, मागे। म्हणजे दोन्ही फ्रिक्शन कुठे लागणार, दोन्ही फ्रिक्शन कुठे लागणार, बी वर, बी वर दोन्ही फ्रिक्शन कुठे लागणार, हॅलो, मागे बघा, दिस इज ए, दिस इज बी and this is C। आता तुम्ही बी वर फोर्स लावताय, so the tendency of B is to go ahead, move this side। This is A, this is B, and this is C। So C will try to oppose this, okay, so C will try to oppose this, okay, C will try to oppose this, so C will apply a force, friction force on B मागे, यानी F2, आणि A पण काय करणार, A पण त्याला अपोज करणार, म्हणजे F1 कुठे लागणार, मागे। हे कळालं का तुम्हाला, F1 आणि F2 कुठे लागणार, मागे। तर ह्याचं रिएक्शन ए वर कुठे लागेल, पुढे F1, आणि ह्याचं रिएक्शन सी वर कुठे लागेल, पुढे। इथपर्यंत समजलं का तुम्हाला? हो, आता परत तेच करायचं आहे आपल्याला, स्टेप नंबर 1 म्हणजे टेक ए प्लस बी प्लस सी एज अ सिस्टम। तर परत एक्सेलरेशन येणार 5/6, कारण कॅल्क्युलेशन सेम आहे। आता काय करा, आता व्हेरिफिकेशन, स्टेप नंबर 2। तर स्टेप नंबर 2 मध्ये टेक ए एज अ सिस्टम, पहिल्यांदा ए ला सिस्टम घ्या आणि व्हेरीफाय करा। तर जर तुम्ही ए ला सिस्टम घेतला तर ए चा मास आहे 2, हा आहे F1 रिक्वायर्ड, आणि एक्सेलरेशन आहे 5/6, कारण एकच फोर्स आहे, एकच फोर्स आहे। आता समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू MA, नेट फोर्स म्हणजे F1 रिक्वायर्ड इज इक्वल टू MA म्हणजे 5/6, 2 3 जा 6 म्हणजे 5/3 म्हणजे 1.67 न्यूटन। आता F1S मॅक्स किती आहे, F1S मॅक्स आहे 4 न्यूटन, ते आपण कॅल्क्युलेट केलं होतं। सो F1 रिक्वायर्ड कमी आहे, so is it possible F1 required is less than F1S max? Is it possible or not? Hello? Yes or no? Yes, it's possible. So therefore, it is possible. That means what? That means block A will move along with B and C. Now you have to do one more verification. Now take block C. Take block C. तो आपने ब्लॉक सी लिया, तो ब्लॉक सी पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है वो मैंने बताया था आपको, आगे लग रहा है F2। So you have to find F2 required. This is 7. Acceleration is 5/6. So summation of net force is equal to mass into acceleration.
नेट फोर्स F2 रिक्वायर्ड एकच फोर्स आहे. हाँ सी वर एकच फोर्स है. बी आहे ना, बी वर 3 फोर्स लागते. बी पे आगे क्या लग रहा है 10, इधर क्या लग रहा है F1, इधर क्या लग रहा है F2. तो वो बी को नहीं लिया हमने सिस्टम, हमने सिस्टम लिया है सी को, और सी पर एक ही फोर्स लग रहा है. ठीक है, सी पर क्या लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है. तो ये हो जाएगा मास m कितना है 7, a कितना है 5/6. तो यहाँ से F2 रिक्वायर्ड कितना आया, वो आया 35/6. मतलब 6 5 द 30, 6 8 द 48, 6 3 द 80, ये इतना आ गया. अभी अभी हमको वेरीफाई करना है F2S मैक्स कितना है. वो है 15 न्यूटन, U2 N2. U2 is 0.3, N is 50. है कि नहीं, ये 2 kg, ये 3 kg. तो यहाँ का नॉर्मल कितना होगा, यहाँ का नॉर्मल 50 न्यूटन होगा. ये आया 15 न्यूटन. बताओ इज इट पॉसिबल और नॉट. F2 required is less than F2S max. ये आया 5.83 और ये है 15. इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल और नॉट. यस. सो दिस इज पॉसिबल, सो दिस इज पॉसिबल. तो कंक्लूजन ये आया that A, B, C will move together. A, B, C will move together. और तीनों का एक्सेलरेशन होगा 5/6. तो थर्ड केस आप लोग खुद से ट्राई करिए. ठीक है, ये सॉल्यूशन में मैं भेज दूंगा, लेकिन आप एक बार ट्राई करो. केस 3, केस 3 में क्या हो रहा है, ये जो 3 है इस पे फोर्स लग रहा है आगे. तो इसका टेंडेन्सी ह्याची टेंडेन्सी पुढे जायची आहे, तर ह्याच्यावर फ्रिक्शन कुठे लागणार, मागे. ह्याचं रिएक्शन ह्याच्यावर कुठे लागणार, पुढे. आता ह्याची टेंडेन्सी पुढे जायची आहे, तर हा ए काय करणार, ए याला अपोज करणार, म्हणजे F1 कुठे लागणार, मागे, आणि ह्याच्यावर फ्रिक्शन पुढे. समजलं. तर पहिल्यांदा इथून बघा, इथून बघायचं पहिल्यांदा. त्याची टेंडेन्सी पुढे जायची आहे सी 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 ची, तर बी काय करणार, त्याला अपोज करणार, अपोज. आणि ह्याचं रिएक्शन बी वर कुठे लागेल, पुढे. आता बी ची टेंडेन्सी पुढे जायची आहे, तर ए काय करणार, ए त्याला अपोज करणार, आणि ह्याचं रिएक्शन ए वर कुठे लागेल, पुढे. ठीक है, तर सी आप तुम्हें यू ट्राई इट योरसेल्फ, ट्राई इट योरसेल्फ. आई विल सेंड द सॉल्यूशन. इसमें मैंने सॉल्व किया है, नहीं आया तो आप देख सकते हो. ठीक है, तो मैंने ये है आपका केस 3 है, ये सॉल्व किया हुआ है. अगर नहीं आया तो आप देख सकते हो. ठीक है, समझ में आया. ओके ओके. तो 23 हो गया. 24, अब देखो 24th क्वेश्चन. 24th क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको. 24th में आपको क्या है, दो ब्लॉक्स दिए. देखो 24th में देयर आर टू ब्लॉक्स. ये जो ब्लॉक है इस पे फोर्स यहाँ लग रहा है, दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो म्यू है, और नीचे 0 है. और यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, ये पुली है, और ये जो है यहाँ कनेक्टेड है. ठीक है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड F max so that the system will be in equilibrium. So the system will be in equilibrium. तो इस अब ये फोर्स इधर, फोर्स इकडे लागतोय, तर ह्याची टेंडेन्सी कुठे जायची आहे, तर ह्याची टेंडेन्सी इकडे जायची आहे. ठीक आहे, आणि स्ट्रिंग मध्ये काय आहे, टेन्शन. तर टेंडेन्सी तिकडे जायची आहे ब्लॉक ए ची, तर बी त्याच्यावर फ्रिक्शन कुठे लावणार, मागे. आता स्टॅटिक फ्रिक्शन, कारण कारण सिस्टमची एक्सेलरेशन आहे 0, कारण सिस्टम इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, आता मूव्ह नाही करणार. इथपर्यंत समजलं सगळ्यांना.
हो, तर आता तुम्ही काय करा, आता तुम्ही ए टेक ए एज अ सिस्टम. तर ए ला तुम्ही सिस्टम घेतला तर ए वर काय काय फोर्स लागतंय, इकडे टेन्शन, इकडे फ्रिक्शन आणि इकडे फोर्स. तर इक्वेशन काय होणार, आता कोणाला प्लस कोणाला मायनस घ्या कारण ऍक्सेलरेशन 0 आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. याचे मास आहे स्मॉल एम, ठीक आहे. वरच्या ब्लॉकचा मास आहे स्मॉल एम आणि खालच्या ब्लॉकचा मास आहे कॅपिटल एम. तर T प्लस एफ एस मायनस एफ इज इक्वल टू 0. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तर आता तुम्ही बी ला सिस्टम घ्या. तर बी वर फ्रिक्शन कुठे लागणार, बी वर फ्रिक्शन मागे लागणार कारण ए वर फ्रिक्शन पुढे लागतोय, त्याचं रिॲक्शन बी वर कुठे लागणार, मागे. आता तुम्ही बी ला सिस्टम घ्या. तर बी वर इकडे काय लागतोय, टेन्शन टी आणि इकडे काय लागतोय, फ्रिक्शन. आणि ऍक्सेलरेशन किती आहे, 0. मास किती आहे, कॅपिटल आहे. आता हा प्लस हा मायनस, तर टी मायनस एफ एस इज 0 म्हणजे टी इज इक्वल टू एफ एस. हा आहे इक्वेशन नंबर 2. आता 2 ला 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करा. 2 म्हणजे टी च्या व्हॅल्यू, टेन्शनचं व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. तर युजिंग 2 in 1, तर टी च्या जागी काय लिहायचंय, टी च्या जागी लिहायचंय एफ एस. एफ एस प्लस एफ एस मायनस एफ इज 0. तर एफ चं व्हॅल्यू आहे 2 एफ एस आणि मॅक्सिमम फ्रिक्शनचं व्हॅल्यू आहे म्यू एन. आणि इकडे इकडे नॉर्मलचं व्हॅल्यू किती येणार, नॉर्मलचं व्हॅल्यू येणार एम जी. सो 2 म्यू एम जी. डिड यू अंडरस्टँड, दिस इज 24th का ए पार्ट. डिड यू अंडरस्टँड, समजलं. ओके, सिमिलरली यू कैन डू द बी पार्ट. बी पार्ट में कुछ भी नहीं है, बी पार्ट इज व्हेरी सिंपल. बघा बी पार्ट मध्ये काय दिलंय, इफ यू डबल द फोर्स, दिस इज F1 जे आपण दिस इज फ्रॉम पार्ट ए दिया. इफ यू डबल द फोर्स तो क्या होगा, इफ यू डबल द फोर्स विल बिकम 4 mu m. So same diagram, but there will be an acceleration. Now the acceleration is 0. Now the acceleration will not be 0. Now there will be acceleration. Same diagram. Only the value of the force is 4 mu m. That, so take this as plus because acceleration is, and take this as minus. So 4 mu m minus tension minus mu mg is ma. This is equation number 1. Then take the second block. तो अभी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि अभी ब्लॉक रेस्ट पे नहीं है. अभी क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन. आता काइनेटिक फ्रिक्शन लगना. काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, म्यू एन. एन से वैल्यू कितनी है, एम जी. अब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन. तर वरच्या ब्लॉकवर फ्रिक्शन मागे आणि खालच्या ब्लॉकवर सॉरी पुढे आणि खालच्या ब्लॉकवर फ्रिक्शन लागणार मागे. बस P minus mu mg is it. This is the second equation. Then you can solve it and you'll get A. Did you understand? Okay. Okay. And question number 25. You just have to find the normal reaction. The value of normal will change. The value of normal will change. बस इतना ही होगा. बाकी सारे स्टेप सेम है. 25 में सिर्फ नॉर्मल का वैल्यू चेंज होगा, बाकी सारे स्टेप सेम है. ठीक है. ओके, सारे स्टेप सेम है, सारे के सारे. बस नॉर्मल चेंज होगा क्योंकि एक्सेलरेशन दिया है डाउनवर्ड 25 में. ठीक है. चलो बाय बाय एवरीवन. आई विल सेंड यू द पीडीएफ राइट नाउ इटसेल्फ. Okay. Okay. So I'll send you the PDF immediately. Okay, one.
अभी तो